which is interpreted and which is dynamically typed. It is and completely object-oriented programming language, and it is case sensitive. These are few things that we have already learned about Python. And then coming to the key features of the Python, here we have all these listed key features here, but the most important ones are interpreted language and dynamically typed. Okay. Interpreted language, basically it is called because the compiler first converts it into byte code, but this byte code is actually not readable, right, to the machine. It is not understandable by machine. So what happens is this byte code is in turn converted into machine code by using compiler, sorry, interpreter, Python's interpreter. Okay. And in the Python virtual machine, we have just in time interpreter, which actually converts this and then produces the output. Now coming to why it is called dynamically typed, because the data types are actually not given at the time of writing the code. It actually happens during the runtime, and Python interpreter does that for us. Then we learned some basic Python programming, and then coming to what are keywords in Python. Keywords are the reserved words that have a special meaning which the Python interpreter understands. How many keywords are there in Python? कितने keywords हैं? 33. Okay. 33. Okay. So coming to the identifiers, identifiers is nothing but just a name or something that will help us to identify things on the program. And one rule for naming an identifier is basically we can use all the characters from A to Z, 0 to 9, and only underscore. No other special characters we can use, and we cannot start the variable name or any name with a digit. Okay. And keywords cannot be used as a name. Then we studied about variables. What variables are? Variables are basically containers that store our value in the memory, right? Yes or no? Okay. And then we learned how to comment our code. What if you want to write some note or something for others to understand what exactly we have done? We put comments, and for single line comment we use a hashtag, and for multi-line comments we use three single inverted commas or three double inverted commas also you can use. Okay. Now coming to the next thing, then we studied about f string. What are f string in Python? So these are basically for formatting your string. Okay, so what we do is we put a f in front, that is we prefix our string with f, and then whatever is written inside the curly braces, and if that is a variable, okay, so instead of variable name we will get a variable value in that. Okay. And then memory management, we know that everything in Python is a object, right? So what happens is Python first creates its own private heap memory. It has its own heap space where it manages all its resources. Okay, resources means all its objects, function, methods, whatever we have, everything is managed in the heap space that Python has for its own, of its own. So now coming to the data types, basically. So data types, we have seen so many data types: numbers, string, and then your none. All these we have actually seen, and there were few left. That is in the sequence that you see, list, tuples, then the mapping user dictionaries. So we are going to discuss on these as well, and that will be post our loop. And now coming to the next thing, then coming to the operators, we have studied about all the operators. Arithmetic operators basically help us to perform mathematical operations, and then assignment operators helps us to assign a value. Okay. Then relational operators, these are basically used in the conditions, right? If else में देखे हो ना, we've used if in if else, right? Yes or no? So whenever we want to find a relation, whenever we are writing a condition, तो कौन use होता है सबसे ज्यादा? Relational Relational operator. operators. Relational operators. Okay. एंड देन कम्स योर लॉजिकल ऑपरेटर, जहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हैं आप अपने अलग अलग लॉजिक को. ठीक है, इफ यू हैव मोर देन वन कंडीशन यू कैन डू इट हियर. And then comes your identity operator. This is basically checking whether uh, whatever you are actually want to check, so is that does that belong to a particular object or not. तो ये check करने में basically काम आता है identity operator. और membership operator basically helps us to check whether it is a member of something or not. ठीक है, तो ये चेक करना पड़ता है, तो फॉर दैट वी यूज मेंबरशिप ऑपरेटर. ओके. देन वी लर्न हाउ टू टेक यूजर इनपुट. तो इनपुट लेना सीखा. एंड व्हाट इज द रिटर्न टाइप.
Like what is the variable if we store like input and then enter your first name? What will be the type of the variable? The type of the variable would be string. Would be a string automatically. And if we typecast this into int, then it will be int. Then we learned about type conversion in Python, when we learned explicit type conversion, which we actually perform manually, and you know how to do it. So if you want to convert an integer into string, then we have to write str, and then inside brackets we have to pass the integer value. Then it will convert it into string. Then implicit typecasting also we have seen how automatically Python interpreter converts at the runtime. So we have seen this. And now in the last class we actually went through this, that is if else, if elif else. So we have seen all these, right? We have seen use of first three, correct? And for these we had gone through some programs. So for the programs we had done minimum of two numbers, maximum of two numbers, even, odd, positive number, negative number, or zero, correct? And apart from that we had few other questions in the capsule wherein you had to check whether a person is eligible to vote or not, correct? Okay, so now coming to one next thing that we actually were left in the last class, that is nested if else. Okay, so what does nested mean? Can anybody tell me what does nested mean? Nested का meaning क्या होता है? Nested mean one thing inside the other. Okay, one thing inside the other. So if I'm saying nested if else, that is nested if else. What does this mean is, what does this mean is, like we were writing like this, if, and then our condition, then colon, and then we were writing our code here, whatever code you want to write, and then we were writing else right here, correct? Okay, so this is how we were writing our code earlier, but this is not exactly nested if else, this is normal if else that we were using. Okay, so how we can actually convert this? So if you people remember, we had done one program jahan pe actually in the last class actually I gave you a program, okay, which was basically to write a program to print whether a number is positive or negative, and zero should be considered as part of your negative number, right? This is what I had given, correct, as part of the capsule. Okay, so what we had done is we have to write positive or negative, and zero should be considered as negative. Okay, so we don't know what the user is going to enter, so I'm just writing n equal to and then int, and then you will write your message, that is input, and then enter. I'm just writing enter, you people know how it is displayed, enter. Okay, so this is there, and then whatever number he has entered, what we will do is if sorry, uh, let me just remove the bracket here. If n is less than equal to 0, if n is less than equal to 0, what I can do is I can simply print negative, correct? I can simply do this. Yes. Correct, this will give me. But what if I said ki you have to print a number is not, if it is negative, print negative, it is 0, then print 0. Okay, I want you to print, if the number entered by the user is 0, then you should print 0. If the number entered by the user is negative, write negative. But I want you to use this condition firstly. You have to use this condition. Okay, one way we had already seen, right? We had used if, elif, and then else, correct? Yes or no? Correct, we had seen that.
in the last class? Yes. Yes, yes. But what if I want to actually use this condition? If n is less than equal to 0, then do something. Okay, so if we want to actually do this, if we are just asking the user no, you write this program, you write it this way. So what user will do? Okay, so he said if the number is less than equal to 0, then we have two conditions, right? We have two conditions, correct? Yes or no? The Yes. conditions would be if now the condition would be num if number is less than 0, then what you will do? Sorry, actually I'm just going back to my Java codes. Let me just omit this. Okay. Okay, so if n is less than 0, then again you'll have to have some indentation here after if, and then you will print as print Number. negative. Correct? Else, if it is not less than 0, then automatically what it is? It is 0, 0. right? So it will print 0. And then for this if, okay, just consider this if now. This if will only work if the number is less than 0, correct? Yes or no? Yes. Yes or no? And if this is no, if this is false, then where will it go? Will it go to this else? Yes. No, it is not going to get into this else. Okay, where it will go? It will have its own else. This if will have its own else. Okay, so it will have an own else, that is print number is positive. Okay, so this is what the program will look like. I know for some it will be a little confusing, but I'll tell you how exactly this is working. Okay, let's understand first, and then we'll come to the flow part of it. So I said you have to use this condition n is less than equal to 0. Nobody will tell you, but just to explain you this concept of nested if else, I am using it. Okay. Okay, so suppose the user has given me this input. Okay, suppose the user has given me this input. The input is n. Okay, I'm not right now putting the value n, and then what happens is next step would be a program would come, and what our program will check? What our program will check? Come on, tell me. It will check the first condition, right? Yes or no? Yes. It will check whether n It is. is less than equal to 0. Correct. It will check this condition first. Yes. Mm. Okay. It is checking. Then for this, we can have two things, right? Either yes or no. Correct. Suppose this side I'm taking as no, and this side I'm taking as yes. Correct. Correct. Yes, ma'am. Okay. So if this is true, if n is less than equal to 0, if this is true, then what we are doing? If this is true, suppose this is part is And true, we will the again first check. one, then we are again checking a condition. So again checking a condition, and this condition is print negative and n less than 0. Okay. So we are again checking a condition, that is, we'll put a condition here. N is less than 0. Again, we are putting a condition here, question mark. Okay, so this could also give me two things, right? Either yes or no, correct? If it is giving me yes, then what does it mean? If it is giving me yes, what will I print? Print Why negative? negative. Can somebody put the other person on mute, please? Okay. And if it is no, then what will you do? What will you do? Say, you will print 0, right? 0. Yes. And now, suppose if this condition is false, n less than equal to 0, if this condition is false, if this condition is false, then you will come and print positive. Positive. Are you able to follow now the proper conditions here? Okay. Now inside n give anything. Suppose user is giving n equal to 10. Now go through this flow.
n less than equal to 0. Is it true? Yes or no? Which side it will go? Array n less than equal to 0. No. Is n less than equal to 0? N is 10. Is it true or false? Positive, true. No. It is false, right? 10 is not less than equal to 0. Neither it is less, neither it is equal to 0. So it will go to the no side, right? So what it will print? It will print positive, right? Positive. It is giving the correct answer now. If n is less than equal to 0, if it is not coming here, it is coming to this side. It is giving us this thing. Now, suppose if I am giving equal to 0, if I am giving, okay, I'm just removing this one. N is equal to your 0. So then what will happen is, it will come and check n less than equal to 0. 0 less than equal to 0. 0 less than equal to 0 means equal to 0 part is true, right? Yes or no? Yes. True. So now it will come to this, and here it will check n is less than 0. Is n less than 0? N is equal to 0, right? So 0 less than 0? No. 0 is equal to 0, right? अरे 0 0 से इक्वल होता है ना, 0 0 से छोटा थोड़ी होता है. Yes or no? Yes, bhai. Yes. Okay, so it will come to this no, right? Because 0 is not less than 0. 0 is equal to 0. So it will come to yeah, and it will print 0. If this would have been like minus 10, then the answer would have been yes, and this would have printed this. So same thing you can do. This is just a concept. You can do the previous way if you are comfortable. You just need to know at least one way. ठीक है, आपको अपने घर पहुंचने का बस एक रास्ता पता होना चाहिए. बट आई एम टेलिंग यू, एक ही चीज को करने का, आपको अपने घर पहुंचने का बहुत सारा रास्ता होता है. ठीक है, बट यू कैन फॉलो एनी ऑफ द थिंग्स. बट ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए आई हैव टू टीच दिस. ठीक है, तो याद रखो कि कुछ नहीं, अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तभी ये अंदर जाएगा, राइट? तभी ये बाकी ये कंडीशन को चेक करेगा. यस और नो? कम ऑन टेल मी, यस और नो? अगर मेरा ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तभी ये अंदर जाएगा, करेक्ट? बताओ, यहाँ पे जा रहा था जब मैंने 10 दिया था, सिर्फ ओनली 10 दिया था, तो क्या ये इधर गया था और किसी के पास? बताओ. नहीं गया था, राइट? सो जब मेरा कंडीशन ये वाला ट्रू होगा, यस होगा, तब ये बाकी के पास जाता है. तो दैट इज व्हाट द कोड इज. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, जब भी कंडीशन ट्रू होता है तो रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज द कोड फ्लो विल गेट इनसाइड दिस ब्लॉक ऑफ कोड. ये इसके अंदर कोड के चले जाता है. आया बात समझ में? तो जब भी कंडीशन ट्रू होगा तभी जाता है, राइट? जैसे देखो अभी क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज, अभी जैसे हम लोग लिखे थे इवन नंबर वाला प्रोग्राम. हु विल टेल मी द लॉजिक? मान लो n में यूजर ने कुछ डाला है, ठीक है, आई डोंट नो, मान लो डाला है, ठीक है. हु विल टेल मी द लॉजिक इवन नंबर वाला? इफ n mod 2 इक्वल टू 0. अगर ये होता है तब क्या करते हो आप लोग? बोलते हो ना प्रिंट, क्या बोलते हो? इवन. एल्स क्या बोलते हो? Odd. प्रिंट ऑड. नाउ टेल मी कि यहाँ 10, अगर हम यहाँ 10 डाल देते हैं तो ये क्या होगा? ये ट्रू हुआ. Yes. अगर ये ट्रू होता है तभी ये अंदर जाता है इस वाले कोड में. अगर यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 101 लिख दूं तो क्या ये ट्रू होगा? बताओ. नहीं होगा. और क्या ये फिर अंदर वाले कोड में जाएगा? नहीं जाएगा. फॉल्स होने से कहाँ गया? एल्स में गया ना. और एल्स में जाने के बाद ये एल्स के अंदर के कोड में जाता है, करेक्ट? यस और नो? करेक्ट. यही होता है ना, फ्लो समझो. निशी, यही होता है ना? हाँ यही होता है. वो मतलब वो सही होगा तो वो अंदर जाएगा, अदरवाइज फिर एल्स पार्ट में चल जाएगा. करेक्ट. ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि ऑलवेज इफ वी वांट टू गेट इनसाइड दिस, अगर हमको इसके अंदर के कोड को चलाना है, ठीक है, इफ यू वांट टू रन दिस पर्टिकुलर कोड, तो हमको क्या करना होगा? वी हैव टू मेक दिस कंडीशन एज ट्रू. ये कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो कभी जाएगा? कभी नहीं जा सकता है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, चलो. तो सिमिलरली यहाँ पे वही हो रहा है
कि पहले आ रहा है, ये चेक कर रहा है कि भाई n लेस देन इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सही होगा तभी अंदर जाएगा, और ये तो सारा कोड अंदर लिखा हुआ है देखो। एंड इन पाइथन इंडेंटेशन इज एवरीथिंग, जो लिखने का तरीका है वो ही सब कुछ है। अगर यहाँ पे लिखने के तरीके में इधर का उधर कर दिए, इंडेंटेशन में इधर का उधर कर दिए, प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, प्लीज सी टू इट कि आप केयरफुली कर रहे हो इस सब चीज को। एक बार आदत हो जाएगी फिर आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है, बट प्लीज प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस से आदत होगी। तो अगर ये कंडीशन नहीं चलेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये अपने वाले एल्स के पास जाएगा, ठीक है, ये अंदर वाले के पास नहीं जाएगा, ये बाहर वाले के पास एल्स में गया, और ये इफ और ये एल्स दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये अपने वाले काम करेगा। तो आओ हम लोग ये प्रोग्राम जो लिखे थे हम लोग इसको समझ चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट नेस्टेड इफ एल्स मींस। नेस्टेड का मतलब क्या बताया था, एक के अंदर एक। नाउ यू सी, इस वाले इफ के अंदर वी हैव अनदर इफ एल्स, राइट, यहाँ पे एक और इफ है हमारा, और उसके बाद इसका यहाँ पे अलग से कोड सब लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट रिमूव दिस, इंडेंटेशन को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर होता है हमारा एल्स, और उसके बाद ये। तो देखो इफ के अंदर फिर इफ एल्स आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, क्या बोलते हैं, नेस्टेड का मतलब वन इनसाइड द अदर, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। I hope this is clear to everyone. Anybody who's having doubts in this? Anyone? Anyone who's having any doubts? No. Okay. काजी भाई Hmm. Say. तो ठीक है, समझ नहीं आया वहाँ पर ही जब n is greater than equal to, जब जीरो लगा is greater than जीरो था तो वहाँ पर Sharik, can you बात- speak in? Sharik, can you speak in English? like you wrote there n is greater than equal to 0 Mm-hmm. N is less than equal to 0. and less Not- than equal to 0, Mhm. then again you put n is greater less than 0. Mhm. I didn't understand that part. Why? Because you were talking about yesterday question that write a program where you take a number, okay, Mhm. where you have to consider 0 as negative number. So Mhm. if you have if you are going with that question, No, no, then no. It is actually a different question. I'll just tell you. The question here that I was actually asking is, the user has given you this input and I just intentionally wanted you to use this function first. Okay. तो आप इंटेंशनली, मैंने कहा कि आप इसको यूज करो, उसके बाद आप नीचे अलग से कर दो, ठीक है। तो ये कंडीशन जब करोगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर या तो जो जीरो होगा या फिर जो नेगेटिव होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, राइट, यस और नो। अगर होगा तभी ये इसके अंदर आएगा, शारिक, यस और नो? हाँ, yes, yes. करेक्ट। तो ये इसके अंदर आ गया। अब मैं कहा कि अब तुम उसको अलग अलग करो, तो ये मैंने इंटेंशनली जान के स्ट्रेस करके कहा, वरना फिर अलग अलग आप करके आप इफ एलिफ एल्स करके आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इट मींस कि हम लोग अंदर आ गए। अब हम लोग के पास कोई भी नंबर आया तो कौन सा आया पहले, हम लोग उसको पहले ये कर लिए, सेग्रीगेट कर लिए कि भाई नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। अब अंदर आके चेक किया क्या ये नेगेटिव है, एन लेस देन जीरो। अगर नेगेटिव है तो प्रिंट कर दिया नेगेटिव, और अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा अब उसके अंदर, बताओ? 0. जीरो। तो वही किया, ठीक है। तो ये बस एक तरीका है करने का, जहां पे मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। इट इज नॉट बेसिकली अबाउट कि क्या ये प्रोग्राम इस तरह से करे या उस तरह से करे। देखो सिंपल से एक चीज बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, प्रोग्राम कुछ नहीं है, और एवरीथिंग दैट मैटर्स इज एन आउटपुट। आउटपुट जो है वो सही कैसे लाते हो, लेकिन हाँ उसके सही लाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी लिख दो, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से उसको करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। सपोज तुम कहीं से निकले, ठीक है, इफ यू हैव टू रीच योर होम, राइट, आपके घर पहुंचने का हो सकता है बहुत सारा वहां से रास्ता हो, लेकिन अगर आपको एक रास्ता पता है, स्टिल यू विल बी एबल टू गेट बैक टू योर होम, राइट, यस और नो? Yes. ठीक है। तो ये जो था ना, ये सेम प्रोग्राम जो हम लोगों ने पहले किया था, उसी को दूसरा तरीका है ये करने का, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देख के डरना नहीं है, ठीक है। इट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू अ कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। मैंने सेम प्रोग्राम को उठा के आपको समझा दिया, अंडरस्टूड? Yes, yes, sir.
ओके, तो आप भी हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे और जिसको देखेंगे और जिसका नाम बेसिकली है लीप ईयर। ठीक है, तो अभी जो प्रोग्राम करेंगे उसका नाम क्या है, लीप ईयर। और लीप ईयर होता क्या है, हु विल टेल मी नाउ? निशी, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है? Leap year is a one extra day which will add in February, in month of February after every 4 years. यार Like मुझे तो उसके लिए फिर कैलेंडर देखना होगा। अच्छा चलो, सपोज इफ आई एम जस्ट आस्किंग यू 2024 लीप ईयर और नॉट? ये तो हमको भी कैलेंडर देखना होगा। अरे यार, बचपन से सब कोई पढ़ते आया है, कोई भी ईयर डिवाइड बाई 4 हो रहा है तो वो लीप ईयर बोला जाता है ना। जनरली बचपन से क्या पढ़ते आए हैं लोग, सब यही बोलते हैं ना। जैसे 2024, अगर इसको आप डिवाइड बाई 4 कर पा रहे हो तो इसको इंसान बोलता है कि ये लीप ईयर है कि नहीं? ये बोला जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड अप टिल नाउ। ये तो हमें पता है कि चलो फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को मतलब बचपन से बताया गया है। बट दिस इज पार्शियली करेक्ट, ये पूरा करेक्ट नहीं है, दिस इज पार्शियली करेक्ट। Exactly. अच्छा, हु विल टेल मी इफ आई वांट टू चेक कि ये नंबर, अगर हमको चेक करना है कि डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि डिविजिबल बाय 4 होगा तब ये लीप ईयर बोलते हैं, राइट? तो बताओ ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 4 कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लो ये नंबर मेरा y के अंदर अगर स्टोर है, अरे कल ही पिछले ही क्लास बताया था, डिविजिबल चेक करना है कभी भी मॉड कैसे करते हैं? मॉड 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 लगाते हैं, तो Mod y के साथ मॉड y लगाते हैं। mod 4 equal to 0. करेक्ट, अगर पूरा डिविजिबल होगा तो इक्वल टू जीरो होना ही होना है, राइट? अरे इवन नंबर ऑड नंबर को याद करो ना, है कि नहीं? चलो, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग अब क्विकली इसको समझते हैं कि ये पार्शियली राइट क्यों कहा मैंने। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे 1900, ठीक है 1900 अगर मैं आपको ये देता हूँ, ठीक है ये ईयर देता हूँ, इफ यू डिवाइड दिस बाय 4, इफ यू डिवाइड दिस बाय 4 तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए था, ये लीप ईयर होता, यस और नो? डिवाइड कर लो, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 2 जीरो है ना, हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो करके दिखा देते हैं, कुछ लोगों को मैथ्स में थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो 4 से कर लो, 4 4 जा 16, एंड देन यहाँ पे 3 जीरो, तो 4 7 जा 28, फिर 2 और 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा ना। 0. तो ये तो डिविजिबल है ना, करेक्ट, यस और हाँ. नो? डिविजिबल है। Yes. बट व्हाट इफ आई एक्चुअली कम हियर एंड सर्च इज 1900 अ लीप ईयर? आंसर क्या देगा देखो। कहीं पे आ रहा है, देखो, द ईयर 1900 वाज नॉट अ लीप ईयर लिखा है, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ये 1900 जो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, दो इट इज डिविजिबल बाय 4, तो ये जो है ये आधा सही है। ठीक है, आधा सच है जो बोलते हैं ना, तो ये आधा सच है। तो आओ आज हम लोग सीखते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। ठीक है, तो लीप ईयर में दो बातें होती है। ठीक है, तो हम लोग तो सबसे पहले ईयर मिलता है, राइट? हम ईयर को वाई के अंदर ले रहे हैं, मिलता है ना ईयर, यस और नो? अरे बोलो, कोई भी ईयर दे सकता है ना। अगर मैं बोलूं कि राइट अ प्रोग्राम जहां पे अगर मैं तुम्हें ईयर देता हूं तो तुम उसको बताओगे लीप ईयर है कि नहीं है, करेक्ट? Yes, yes, yes. तो यहाँ पे समझ लो वाई के अंदर मैंने ईयर दे दिया तुमको। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये लीप ईयर कब होता है? देखो लीप ईयर के लिए ना इसको दो अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन, ठीक है, देखो कंडीशन पे बहुत आराम से सुनना क्योंकि उसी के हिसाब से प्रोग्राम लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, इफ इट इज अ सेंचुरी ईयर। ठीक है, रुको ऐसे नहीं, हम तुमको जैसे लिख रहे थे वैसे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाई आपको मिलेगा यूजर से। ठीक है, मिला। अब आपको चेक करना है वाई आके, यहाँ पे दो रास्ता है। ठीक है, अगर वाई वाई इज अ सेंचुरी ईयर। अच्छा, सेंचुरी मतलब क्या होता है?
सेंचुरी मतलब क्या होता है? विराट कोहली भी रिसेंटली मारा है ना सेंचुरी। क्या होता है सेंचुरी? अरे 100. बोलो। 100 को सेंचुरी बोलते हैं ना। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर क्या होता है? वो ईयर जो कि 100 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बता देते हैं। 2000 ये 100 से डिविजिबल है। 100 से डिविजिबल मतलब सीधा डिवाइड कर दो 100 से, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? डिविजिबल मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0. 0। तो इसको देखो, अगर 20 से डिवाइड कर दोगे तो 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो कोई भी ईयर बेसिकली सेंचुरी ईयर क्या होता है? जिसके लास्ट में 2 0 है उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। जैसे 1900 हो गया, 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, जिसके लास्ट में 2 0 है उसको क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं? यानी Century बेसिक year. उसका मीनिंग होता है कि दैट ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 100। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अगर जो हम वाई दिए हैं वो ये या तो हो सकता है वो तुम्हारा 1700, या तो ये हो सकता है, हम ईयर दे रहे हैं ना, या तो ये हो सकता है या फिर हो सकता है 2023, ये भी हम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। राइट, यस और नो? अरे बोलो, हम तो कुछ भी दे सकते हैं ना एज अ Yes, यूजर। yes. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर तुम लोगे 1700 को, ठीक है, तो 1700 का क्या होगा? 1700 अगर हम देते हैं देन दिस विल बी अ सेंचुरी ईयर। करेक्ट, यस की तरफ जाएगा ये। और अगर हम 2023 देते हैं तो ये किसकी तरफ जाएगा? नो की तरफ। करेक्ट, यस और नो? अरे बोलो, अगर हम 1700 देते हैं, लिसन टू माई क्वेश्चन प्रॉपरली। इफ आई एम गिविंग 1700, ठीक है, वाई के अंदर 1700 है, अगर पहले ये सोचो, तो वो यस की तरफ जाएगा कि नो की तरफ जाएगा? यस की तरफ में। चलो परफेक्ट। अगर हम उसको 2023 देंगे तो वो किसके तरफ जाएगा? नो। नो की तरफ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2023 सेंचुरी ईयर नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब क्या है, अगर ये यस की तरफ गया है तो अब क्या करना है देखो। ठीक है, अब ये बोलता है कि अगर कोई भी ईयर, अगर आपका सेंचुरी ईयर है, तब उसको लीप ईयर होने के लिए उसको डिविजिबल बाय 400 होना होगा। 100 नहीं, अब 400। ठीक है, तो अगर ये सेंचुरी ईयर है तो सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने के लिए एक और कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या है? डिविजिबल बाय, ठीक है, वाई डिविजिबल बाय 400 बोले ना, तो मॉड 400 इक्वल टू 0, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो यस हो सकता है या तो नो होगा। यस और नो? या तो नो होगा या तो यस होगा। करेक्ट, Mm-hmm. करेक्ट। अगर हम 1700 दिए हैं तो देखो ये तो किसके तरफ जाएगा? यहां तक तो आ गए, यस के पास तो आ गए, यस के बाद कहाँ जाएगा? यस के पास जाएगा यस कि नो के मीन्स पास जाएगा? नो के पास यस। जाएगा। 1700 को तुम 400 से डिवाइड करके देखो, नहीं होता है। किसके तरफ जाएगा ये? नो। नो के तरफ। जब नो के तरफ जाएगा तो क्या बोले हम? अगर ये 400 से डिवाइड होगा तब क्या बोलोगे तुम? तब बोलोगे उसको लीप ईयर। क्या बोलोगे? LY हम लिख दे रहे हैं, लीप ईयर। लेकिन अगर नो की तरफ जाएगा तो क्या बोलोगे? नॉट अ लीप ईयर। क्या बोलोगे? Not a NLY leap मतलब year. नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, और अगर ये सेंचुरी ईयर नहीं है, जैसे 2023, तो इसका करने का तरीका क्या था? वो जो लोग बचपन से सीखते आए ना, वो तरीका है उसमें। तो उसमें क्या है कि अगर है तो वहां पे आपको फिर उसको देखना है डिवाइड करके 4 से। ठीक है, अगर नो है यानी अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है जैसे 2023, तो अब आप इसको डिवाइड करके देखो किससे? इसको डिवाइड करके देखोगे 4 से। ठीक है, अब इसका भी आंसर दो हो सकता है, या तो यस या तो नो। ये या तो डिवाइड हो रहा है यस, या फिर ये हो रहा है नो में। अगर यस हो रहा है तो क्या बोलोगे? अगर कोई भी ईयर डिवाइड हो जा रहा है बचपन से जो सुनते हैं, अगर वो हो जा रहा है तो क्या बोलोगे? उसको लीप ईयर बोलोगे? यस और नो? राजीव भाई, बोलो। Yes. right now you said that if we are writing 2023 as input, okay. इफ यू So आर राइटिंग 2023 as input, so then करेक्ट, it's automatically a no. ओके, फॉर द फर्स्ट कंडीशन विल रीच ईयर। Yes, no. हम्म, Then there's no point of going further down then, no. Like वाई? you are because what we wanted was to check whether it was a leap year or not. हाँ,
but Okay. still you have a probability of getting a leap year. But it's not possible. 2023. But you are able to tell. How will your computer be able to understand? Okay. If it is 2024, now tell me, come on, tell me for this one. Yeah, it will be a leap year. But how did you say that? You have to tell your computer, like, okay, is it a Okay. century? Is it a century year? Sorry, answer would be no, right? Yes. 2024 is not a century year. Answer would be no. So you are coming to this flow. Then you will check y mod 4 equal to 0. 2024. If you divide by 4, see what is the remainder. 4 5 0. is 20, and then it will be 0 for your 2, and 4 will come down. 4 6 is 24. Remainder is 0. So this is true, right? So it is giving you a leap year. So 2024 is a leap year. So you But need to handle all these conditions. Fazil bhai, Understood? the yes Hmm. part also we are providing the providing that input y modulus 400 is equal to 0. So there, if you put 2024 as input, it would automatically go to a yes, no? 2024 if you give, then It will automatically go to the yes portion. yes portion of which one? Uh, y is a century year or not? Okay, if you give 2024, it will come to yes. Yes, I am thinking that only. If you give 2024, it will come to yes. It's more than century. I am asking what is a century year. सेंचुरी ईयर का मतलब ये नहीं है कि 100 रन से ज्यादा बन गया तो सेंचुरी बोलेंगे, यहाँ पे वो नहीं. सेंचुरी ईयर का मतलब होता है ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 100. 2024 100 से डिविजिबल है क्या? No. सेंचुरी ईयर का मतलब ये होता है, अगर जो भी है तुम्हारा y mod 100 डिविजिबल बाय 100 का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 100 इक्वल टू 0 है क्या ये 2024? No. Then how will it go to yes? It won't go, right? Okay. I got it. Understood? Yes. Okay, now we are going to write this very same program. Okay, how we have to write the program? Now see, I'll just change the color of the pen. First, we write the program in this way. First, we are going to come, we'll take the input from user, then we'll move to the positive side first. And inside positive, again inside this, since we are going inside, so there will be indentation, and then we have this condition, again we are going inside. And no part basically means else. This will be else, this will be inside your if, and this part, since this is no, this will also come inside else. Okay, but first we are going to write this part. Okay, now come, let's see. So I have this open. So if I'm taking year as input, okay, so I'm taking inside y only. So y is equal to, I'll just increase the, oh sorry, decreased it. Okay, y is equal to, suppose I'm taking int and writing input, and inside this I'm just taking input from the user. Sorry, enter year. Okay, and then increase this a little. Okay, now I don't know the year, so year could be anything, right? So now I have to check if we have to first check the condition, that is whether it is a century year or not, right? Yes or no? You have to check this. Yes or no? अरे पहला कंडीशन क्या था फ्लो के हिसाब से? सेंचुरी ईयर है कि नहीं ना, ये ना चेक करना है. Yes. तो सेंचुरी ईयर के लिए क्या बताया? y mod 100 इक्वल टू 0. करेक्ट? यस और नो? होगा. एंड इफ दिस इज ट्रू, अगर ये सही होता है तब ये अंदर आएगा, तो वी हैव टू लीव सम स्पेसेस. इंडेंट अगर नहीं करोगे तो पाइथन में एरर आएगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. तो y mod 100 इक्वल टू 0. अगर ये सही हो रहा है, अगर ये ट्रू हो रहा है, तब क्या करना है? ट्रू हो रहा है तो फिर क्या करना है बताओ? नेक्स्ट व्हाट इज द स्टेप? फिर चेक करना है ना. क्या करना है? चेक करना है. तो चेक करते आओ. इफ स्पेस y mod 400 इक्वल टू 0. 0. अगर ये होता है, ठीक है, अगर 400 होता है देन क्या करोगे? अगर 400 होता है, अगर यस होता है तब क्या करोगे? प्रिंट कर दो लीप लीप ईयर. ईयर. बस कर दो प्रिंट
लीप ईयर, ठीक है। और नहीं हुआ तब हम क्या बताए थे, नो में अगर आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, एल्स। तो ये इसी का एल्स है ना, देखो ये किसका एल्स है, ये 400 वाले का, राइट। ये किसका नो है, 400 करेक्ट। तो ये 400 वाले के नीचे ही लिखेंगे, कहीं और मत लिख देना। 400 वाले के नीचे लिख दिए, और इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे कर देंगे नॉट लीप ईयर, Not a leap year. नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, हो गया। अब ये वाला फ्लो हो गया, पूरा राइट साइड का फ्लो हो गया हम लोग का, यस और नो, हो गया ना। Yes, yes. अब लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो फिर नो, नो मतलब एल्स, एल्स किसका होगा, एल्स जो पहला वाला का था, ये देखो इसका नो है ना, नो किसका है, ये वाला, ये नो किसका है, इसका है ना। सेंचुरी है। हाँ तो ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर के ठीक नीचे में लिखोगे एल्स, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एरर आएगा, वरना फिर यहाँ पे नीचे आओ और जो जिसका है उसके नीचे लिखना है एल्स। अब इसके बाद आ गए, अब यहाँ पे फिर चेक करना है कि भाई ईयर मॉड 4, अब यहाँ पे क्या चेक करोगे, इफ वाई मॉड 4 इक्वल टू 0, अगर ये लिखते हो तो क्या होगा, ये अगर होता है तो क्या होगा, क्या बोलेंगे, लीप ईयर, राइट। और अगर नहीं होगा तब, और देखो अब ये जो अब जो नो है, नो मतलब फिर एल्स हो गया, तो एल्स में क्या करेंगे, एल्स के अंदर क्या है, एल्स के अंदर, और ये किसका एल्स है, 4 वाले का है, तो 4 वाले के ठीक नीचे आ गए, अब यहाँ पे लिखो एल्स, 400 के 4 वाले के नीचे आ गए, अब यहाँ पे एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट नॉन लीप ईयर, कर दो बस प्रिंट, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम। अब देखो इसको हम रन करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा साइज डिक्रीज कर देते हैं, ये हम लोग का प्रोग्राम है, और इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है एंटर ईयर, एंटर ईयर। तो देखो 1900 हम लोग क्या देखे थे इंटरनेट में, क्या देखे थे, 1900 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है, इंटरनेट क्या बोला था, 1900 इज Leap year. नॉट अ लीप ईयर, दिखाए थे ना, द ईयर 1900 वाज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो देखो 1900 मारे हैं, अब देखो आंसर क्या, नॉट अ लीप ईयर आ गया ना। अब मारो 2024, अब देखते हैं उसके लिए क्या आता है, ठीक है, 2024 क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, लीप ईयर। लीप ईयर, यहाँ देखो आ गया लीप ईयर, ठीक है। तो ये है एक्चुअल प्रोग्राम लीप ईयर का। तो टू अंडरस्टैंड द फ्लो यू शुड नो हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर हैपनिंग, और याद रखो अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा, ठीक है। और ये वाला इफ और ये वाला एल्स कहाँ लिखना है ये समझ जाना, गड़बड़ मत करना, पता चला ये वाला एल्स को उठा के यहाँ पे लिख दिए कोने में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि ये अगर इसका है, इसका अगर नो है तब ये एल्स इसी के नीचे होगा। तो देखो जैसे 400 वाला का नो को हम लोग उसी के नीचे लिखे हैं, ठीक है। I'll just take you here, तो 400 वाला का देखो जो नो है, नो के नीचे नॉट अ लीप ईयर, तो 400 वाला का नो, इसके लिए नॉट अ लीप ईयर इसमें किए, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि किसी के अंदर जाएंगे तब आगे का काम होगा, राइट, यस और नो, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और हम लोग चलते हैं अब दूसरी चीज को सीखने के लिए। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, सीख गए हो ना, यस और नो, यस यस। ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, घर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, घर पहुंचना बेसिकली इज द आउटपुट, आउटपुट पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, ठीक है चलो होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम लोग एक और रास्ता देखेंगे जिसमें क्या है, देखो अगर दो कंडीशन मिलके, देखो अगर ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर इसके साथ मिल जाए ईयर मॉड 400, अगर हमको पता है ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0 है, और अगर ईयर मॉड इक्वल मॉड 400 इक्वल टू 0 है, अगर ये दो कंडीशन अगर दोनों सही है, देन मेरा आंसर क्या होगा,
बताओ आंसर क्या होगा? अगर सेंचुरी ईयर भी है और 400 से भी डिविजिबल है तो ये आंसर क्या होगा? लीप ईयर होगा। ठीक है, और अगर 100 से डिविजिबल नहीं है बट 100 से डिविजिबल नहीं है बट 4 से डिविजिबल है, तब क्या होगा? लीप ईयर। तब भी लीप ईयर होगा। तो देयर आर टू कंडीशंस जो मिलके हमको बताता है कि लीप ईयर हो सकता है। तो just tell me if I just copy this program control C and control V, if I just do it again here, ठीक है, program 2, तो इसको देखो अभी हम लोग यहाँ पे अलग तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, I've just copied the program, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम को ऐसे हटा देते हैं। I hope you people have understood the concept, right? कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गया ना आपको? हाँ यस भैया। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हो तो वी डोंट हैव एनी इशू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0 है एंड ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0 है, तब क्या बोलोगे तुम? क्या होगा तुम्हारा आंसर? लीप ईयर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सोचो एक बार। तुमको जो हम ईयर दिए हैं, मान लो 1900 मॉड इक्वल टू ये तो 0 होगा, ये करेक्ट होगा? यस और नो? 1900 सेंचुरी ईयर है कि नहीं, पहले ये बताओ। करेक्ट, लेकिन वो 400 से होगा नहीं होगा ना? नो नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक कंडीशन है। ठीक है, तो एक पूरे कंडीशन को हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, कर दिए कि अगर ये भाई कंडीशन पूरा सही होता है, ये कंडीशन अगर मेरा पूरा सही होता है, तब क्या करो, तब तब तुम इसको बोलना लीप ईयर। लेकिन एक और कंडीशन है जो सही होने से तब भी होगा, और या फिर सॉरी और ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं और यहां पे लिखते हैं क्या, ये सेम कंडीशन हम लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, दूसरा बार लीप ईयर होने के लिए क्या होना है उसको, ईयर को सेंचुरी ईयर नहीं होना है, राइट? सेंचुरी ईयर नहीं होना है ना? यस यस। नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, नॉट ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, सेंचुरी ईयर नहीं होगा, इसका मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, सेंचुरी ईयर नहीं हुआ ना। अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो ऑटोमेटिक सेंचुरी ईयर नहीं है, राइट? और अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तब क्या होना चाहिए, तब ईयर को मॉड होना चाहिए किससे, 4 से, राइट? इक्वल टू 0, करेक्ट। अब कंडीशन देखो, अगर देखो बीच में और होने से क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे। इफ को बोलेंगे अगर अगर ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0 है एंड ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0 है, तब कंडीशन क्या बोलोगे, तुम्हारा आंसर क्या होगा? लीप ईयर, यस और नो? हाँ कि ना? लीप ईयर होगा ना? निशी फॉलो कर रही हो? यस अदर्स? यस। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारा लीप ईयर का। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा है या फिर यहाँ पे और का मतलब या फिर अगर ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है बट वो 4 से डिविजिबल है, तब भी हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, राइट? यस और नो? तो दोनों कंडीशन को सही करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंडेंट करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कि जब भी होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, लीप ईयर। लीप ईयर हो गया कि दोनों कंडीशन अगर सही है तो उसको लीप ईयर बोलो, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाकी कुछ भी आएगा तो क्या होगा बताओ? नॉट अ लीप ईयर। बस हो गया, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब तुम लोग डाल के देखो यहाँ पे और आंसर आता है कि नहीं। चलो रन करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, डाल देते 2028। मतलब 2028 है कि नहीं, पहले तो ये बता दो। जब नॉन सेंचुरी होता है तो क्या क्या होता है टेक्निक चेक करने का? डिवाइड बाय 100 और 400 400 होता है नॉन सेंचुरी में। बाय 100। मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0। अरे यार मैं तो बोल रहा हूँ नॉन सेंचुरी के लिए बताओ क्या होता है, कंडीशन चेक करना। ये तो नॉन सेंचुरी ईयर है, पहले तो ये बता दो, है ना? यस। हाँ, तो 4 इसके लिए से कंडीशन क्या डिविजिबल होता है, होना फॉर चाहिए। इट टू, हाँ तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब बताओ ये है कि नहीं, आंसर बताओ। है यस। है ना? अरे देखो हम तुमको बता रहे, बचपन का मैथ्स अगर भूल गए हो तो कभी भी तुमको चेक करना है ना कि तुम्हारा कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं ना, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करके एक चैप्टर हुआ करता था हम लोग का 4-5 में आई थिंक। ठीक है, तो उसमें क्या बोलता था
कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 4 से डिविजिबल है, जितना भी बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, जितना भी बड़ा नंबर अगर आपको लेना है आप ले लो, देखो वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, उसका सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देख के बता दो, ठीक है। तो मैथ्स में बचपन में ये पढ़ाया गया था, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट देखो 28 4 के टेबल में आता है, 4 7 28, राइट, यस और नो? यस। तो देखो ये वाला लीप ईयर होना चाहिए, आ गया लीप ईयर, ठीक है। फिर से रन करते हैं, फिर बोलो 1900 के लिए, चलो करके देखते हैं। अच्छा 1700, 1900 को भूल जाओ, बहुत देर हो गई, 1900 कर रहे हैं, 1700 बोलो लीप ईयर है कि नहीं है, सोचो, लॉजिक लगाओ, कम ऑन फास्ट। अरे पहले तो बताओ ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं, खुद से पूछो ना, सेंचुरी ईयर है कि नहीं, हाँ कि ना? हाँ सेंचुरी ईयर है। पर ये 400 से डिविजिबल होगा? नहीं, No. so नहीं this होगा, is not a Not leap leap year. year. बस बात खत्म, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। और याद रखो, देखो बचपन में जो मैथ्स पढ़े हैं ना, अगर वो मैथ्स तुमको अच्छे से आता है ना, हम तुमको बता रहे हैं तुमसे अच्छा प्रोग्रामर कोई नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हम हो गया, ठीक है। तुमको अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है ना, तुमको खुद से तुम इतना फास्ट कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, हु कैन टेल मी द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बचपन का? जस्ट आस्किंग, किसी को ऐसा नहीं है, नॉट टू मेक एनीबॉडी फील, देखो यहाँ पे नॉलेज शेयर हो रहा है और कुछ नहीं है। मैं, हो सकता है किसी को नहीं पता हो तो यहाँ मैं बता दूं तो सीख जाओगे। टेबल ऑफ 2 and 3. करेक्ट, कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी टेबल मतलब डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 36 को देखो 2 से डिवाइड होगा ना, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से तो होगा। अब देखो 3 से होगा कि नहीं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये है, तो देखो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दिस, 72 हो जाएगा, 72 के बाद क्या आता है अपना 75, चलो 75 को लेते हैं, देखो ये 2 से डिविजिबल है, बताओ 2 से डिविजिबल है? अरे ऑड नंबर का भी 2 से डिविजिबल होगा क्या? No, no, no. नहीं, तो 2 से नहीं है, तो ये 6 से कभी डिविजिबल होगा नहीं, लेकिन भले ये 3 से डिविजिबल है, देखो 3 से करो तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 बचा, 3 5 जा 15, तो 25 में आ जाएगा 3 के टेबल में, लेकिन ये 6 से डिविजिबल नहीं होती, भले 3 से डिविजिबल है बट इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 6। तो याद रखो मैथ्स में जो पढ़े हैं ना, दोज थिंग्स विल वेरी मच हेल्प यू, ठीक है। जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर है 2 4 6 7 4 3 2 8 7 1, अब बताओ क्या ये डिविजिबल बाई 4 है? 7 1 देख के समझ में आ रहा है कि नहीं होगा? सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखो, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब नहीं होगा, राइट। बट ये अगर 7 2 होता तो, 7 2 होता तो डेफिनेटली डिविजिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 4 से ऐसे डिवाइड करो, 4 से करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 32 बचा यहाँ पे, 32 मतलब 8 बार में, बस हो गया, 4 1 जा 4 और उसके बाद 32 बचा, फिर 8, तो 18 बार में ये पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो जाता अगर ये लास्ट वाला 72 होता तो। एप्टीट्यूड में पूछता है ना कि बताओ ये नंबर में कितना ऐड करेंगे तो मेरा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, पूछता है कि नहीं? देखे होगे नहीं कभी ये सब क्वेश्चन? तो ये सब बेसिक मैथ्स है, अगर आप मैथ्स अच्छे से पढ़े हो ना, अगर स्कूल लेवल पे, और नहीं भी पढ़े हो तो आई एम टेलिंग यू अभी समझ लो, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इवन नंबर ऑड नंबर हम लोग को देख के बता सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डिराइविंग द लॉजिक, बिकॉज कंप्यूटर तो देख के नहीं बता सकता है ना, बता सकता है? बताओ, बता सकता है? नहीं, राइट। तो कंप्यूटर को हम लोग को बताना पड़ता है कि भाई इसको ऐसे करो, अगर ये सही है तब। जैसे बचपन में हम व्हेन वी वर बॉर्न, जब हम लोग बॉर्न होके जब हम लोग आगे पढ़ने गए, तो डू यू थिंक वी न्यू कि जब हम पैदा हुए थे हमको कोई बोलता 4 और हम लोग रोते रोते बोलते हैं हाँ इवन नंबर, ऐसा होता? हुआ है क्या किसी के साथ? बताओ, नहीं। तो हम लोग में क्या है कि हम लोग में एक लैंग्वेज था जिसने हमें सिखाया कि इवन नंबर का मतलब ये होता है, करेक्ट, कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो दैट इज एन इवन नंबर, राइट। देयर वाज अ लैंग्वेज दैट टोल्ड अस, तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज इज पाइथन, और लॉजिक जो पाइथन से बताया गया हमको, तो उसके बेसिस पे कंप्यूटर भी जज करेगा। तो यही होता है मशीन लर्निंग। क्या है मशीन? इंसान की तरह कैसे बिहेव करेगा, अगर तुम उसको इंसान की सारी चीजें बता दोगे भाई हम ऐसे सोचते हैं, तो दैट इज मशीन लर्निंग, और थोड़ी कुछ है कुछ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो आदमी बोलता है ना, डेटा साइंस है, ये है, वो है, दीज आर वेरी इजी थिंग्स इफ यू अंडरस्टैंड, ब्रेक डाउन द थिंग्स इनटू सिंपलर फॉर्मेट, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड कि तुम जैसे सोच रहे हो
बस उस चीज को कोड में लिखना है। बचपन से आज तक यही जानते थे कि डिविजिबल बाय 4 होने से होता है लीप ईयर, लेकिन वो आधा सच था, पूरा नहीं था। तो आज पूरा सीख गए। तो अब कभी भी तुमसे कोई पूछेगा तो पहले क्या करोगे, पहले अब तुम क्या करोगे बताओ, पहले तुम उसको देखोगे दैट इज अ सेंचुरी ईयर और नॉट। अगर सेंचुरी ईयर है तो तुम देखोगे डिविजिबल बाय 400 है कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं है सेंचुरी ईयर तो सीधा डिवाइड करके 4 से बता दो कि है कि नहीं, ठीक है। निशी, अब हम लोग काउंट नहीं करेंगे, फेब्रुवरी का 29 डेज है ना। चलो, जस्ट किडिंग। हेलो भाई, हाँ बोल रहा था एंड और जो लिखे हो इसमें सिंबल नहीं यूज होता, खाली एंड और लिखना करेक्ट पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का सिंबल यूज नहीं होता है, एंड और। अच्छा, ये कौन सा ऑपरेटर था? इट्स गुड एक्चुअली ही ब्रॉट इट अप। तो ये हम लोग कौन से ऑपरेटर में पढ़े थे? विल टेल मी। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर था ये, हाँ कि ना? आ जाओ थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज हम लोगों ने देख लिया। ऑपरेटर्स इन पाइथन, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ कहीं पे होना चाहिए इनपुट से पहले। या तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर में था एंड और, ठीक है, नॉट ऐसे करके था ना, हाँ कि ना? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं, यहाँ सिंबल यूज नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक जावा, जावा में हम लोग सिंबल यूज करते हैं, बट भाई यहाँ तो पे ये नहीं होता। यूज नहीं कर सकते एनओटी? क्या चीज? एनओटी नॉट नहीं यूज कर सकते? नॉट कहाँ पे इक्वल्स, यूज करना चाहते हैं आप? नॉट इक्वल्स लिखे आप। यहाँ पे? हाँ अरे ये तो हम लोग जब कंडीशन लिखते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ठीक है। बट अगर आप इसको करना चाहते हैं वाला नॉट यूज करके, तो आपको तरीका हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बट नॉट टू कंफ्यूज एनीवन, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वल टू कर दो तो ये क्या देगा, ये भी बोलेगा सेंचुरी ईयर, बोलेगा ना, राइट। तो इसके आगे नॉट लगा दो तो नॉट क्या हो जाएगा, अगर ये बोल रहा है सेंचुरी ईयर, इसके आगे अगर आप नॉट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्या हो जाएगा बताओ? सेंचुरी ईयर के आगे नॉट लगा दो क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा? नॉट अ सेंचुरी ईयर, है कि नहीं? तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये करने से अच्छा क्या है, ये मत करो। इज्जत से यहीं पे लिख दो कि नॉट डिविजिबल। अगर नॉट डिविजिबल है तो ऑटोमेटिक वो सेंचुरी ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। चलो, अंडरस्टूड? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स अप टिल हियर? फास्ट, एनीवन? No, no, no. ओके, परफेक्टली फाइन। सो ये हो गया हमारा सॉरी लीप ईयर का प्रोग्राम। एंड नाउ आई विल जस्ट मूव टू अनदर प्रोग्राम, and the other program that not basically program, I'll just teach you something very basic, okay? So the basic thing that we are going to learn today is about pep. First we are going to learn about pep. तो pep होता क्या है, ठीक है? तो pep क्या होता है ये समझ लो। pep जो है that stands for Python Enhancement Proposal। ये क्या है? It is a Python Enhancement Proposal। pep का full form क्या है? Come on tell me। pep stands for Python Enhancement Proposal. So what do you understand by these three terms? जो बोले ना पाइथन का, तो चलो मालूम है पाइथन लैंग्वेज है, तो पाइथन के बारे में कुछ है। What is enhancement? Enhancement क्या होता है in English? Come on tell। अरे enhancement होता है किसी चीज के साथ कुछ ऐड ऑन कर रहे हो तो, right? Yes or no? Enhance कर रहे हो ना, you are enhancing the functionality of something, right? अगर आप कैमरा के आगे अगर लेंस लगा दो तो वो कैमरा के फंक्शनैलिटी को एनहांस कर देता है, यही बोलते हैं ना इंग्लिश में, करेक्ट? बेसिकली किसी चीज को डेवलप करना, इम्प्रोवाइज करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाइथन में क्या होता है ना, जब पाइथन जब भी एक नया वर्जन आता है, कुछ आता है, तो वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट में आता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट बन के आता है उसका। तो वो जो डॉक्यूमेंट है ना, उसी को बोलते हैं पेप। क्या बोलते हैं? पेप, ठीक है। तो पेप क्या है? पेप इज बेसिकली पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल, ठीक है। ये एक प्रपोजल है जो हम लोग क्या है, दैट इज एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है और ये क्या स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट फीचर्स, ठीक है, कि पाइथन में क्या नया फीचर आया है या क्या किस बिल्ड के साथ क्या फीचर आते हैं, ठीक है। वो हो गया कि कैसे लिखने का तरीका, प्रोसेस क्या है, और पाइथन की कुछ कुछ एनवायरमेंट्स है तो उनके ऊपर में बात होती है, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि बन के आता है विच एक्चुअली हैज दीज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, ठीक है।
और मेन पर्पस क्या है आपका पेप का, ठीक है, टू एनहांस द रीडेबिलिटी, ठीक है, जो हम लोग कोड पढ़ते हैं ना, कोड जो पढ़ते हैं उसको कैसे हम लोग इफेक्टिव बनाए ताकि पढ़े। जैसे कमेंट लिखोगे तो कोई भी पढ़ेगा तो तुम्हारा अंडरस्टैंड कर सकता है कोड को, राइट, यस और नो, पीपल कैन Yes. अंडरस्टैंड योर कोड। तो वहां पे एक चीज है जैसे वो, तो वैसे ये क्या करता है, वेन एवर न्यू थिंग इज कमिंग अप, तो ये क्या करता है, इट सीज टू इट कि हमारा एनहांसमेंट हो जाए, रीडेबिलिटी जो है वो एनहांस हो जाए, ठीक है, और कोड भी जो है ना प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, ठीक है। जैसे लिखने का तरीका, मैं बार बार बोलता हूँ ना, लिखने का तरीका क्या है, जैसे इंडेंटेशन आप देते हो तो ये पाइथन में लिखा हुआ है पेप में कि आपको कोड में ऐसे इंडेंट करके लिखो, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये इसके अंदर का कोड है, अंडरस्टूड, लिखा है ना। Yes. तो वो सब चीज कहाँ लिखा होता है, दैट इज इनसाइड पेप। पेप क्या है, पेप इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो ये सिर्फ छोटा सा इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसके अंदर टोटल कितना है, पेप 20 तक है, कहाँ तक है, पेप 20 तक है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेप है जिसके बारे में हो सकता है इंटरव्यूज में पूछा जाए, दैट इज कॉल्ड पेप 8। क्या है वो, पेप 8 क्या बोलते हैं, Pep 8. पेप 8। तो पेप 8 क्या है वो देखो, पेप 8 में कुछ नहीं है, पेप 8 में बेसिकली लिखा है कि आपको कोड कैसे लिखना है, उसका गाइडलाइंस दिया है कि कोड कैसे लिखना है फॉर बेटर रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब कि कोई भी उसको रीड कर रहा है तो उसको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके लिए जो लिखा है ना गाइडलाइंस कि पाइथन का कोड कैसे लिखना है, वो पेप 8 में लिखा है। किस में लिखा है, पेप Pep 8 में 8. लिखा है। तो मैं यहाँ ओपन करके रखा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग यहाँ देखो, मैं अंडरलाइन भी करके रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो पेप 8 क्या है, पेप 8 इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स वेरियस गाइडलाइंस टू राइट द रीडेबल इन पाइथन, ठीक है, कि कैसे आप लोग जो अपना कोड लिखते हो उसको लिखना कैसे है, उसका गाइडलाइंस कहाँ पे लिखा है, पेप 8 में, ठीक है। वैसे ही करके बहुत सारा है, पेप 7 होता है, देखो पेप 7 में किसी और चीज के बारे में होगा, ठीक है। तो पेप 7 क्या है, दिस डॉक्यूमेंट गिव कोडिंग कन्वेंशन फॉर सी कोड, ठीक है, ये सी कोड से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। पेप 9 है, पेप 9 में कुछ है, तो पेप 9 का अलग है। ये क्या करता है, इट इज अ लिंक टू सोर्स टेक्स्ट इन पाइथन रेपोजिटरी, ये रेपोजिटरी रिलेटेड कुछ बात बताता है। तो क्या है, टोटल ऐसे करके पेप बनते गए, ठीक है। पेप 20 इज ऑल्सो वन थिंग, ठीक है, जहां पे हम लोग बात करते हैं, इट लिस्ट 19 दीज ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू पाइथन प्रोग्रामिंग कॉल्ड द जेन ऑफ पाइथन। तो पेप 20 एक पूछा जाता है, और पेप 20 और पेप 8 ये दो जो है, ठीक है, पेप 20 और पेप 8 ये दो जो है, दीज आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, जो बताते हैं गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द रूल्स, ठीक है। कौन बताता है, पेप 8 एंड कौन बताता है दूसरा, पेप Pep 20, 20. ठीक है, ये हो गया। और भी शायद उसमें और भी न्यू पेप्स आए हैं, ठीक है, बट पेप 8 एंड पेप 20 इज जनरली आस्क्ड इन द इंटरव्यू, बिकॉज ये पाइथन के कोडिंग स्टाइल से रिलेटेड है, इस वजह से इनसे बात होती है, वरना फिर इट इज नॉट नीडेड, ठीक है। तो क्वेश्चन बस ये रहता है, व्हाट इज पेप, पेप का फुल फॉर्म याद रखो, पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल, पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल, ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट which specifies information about features, processes and Python environments। और मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस इज टू एनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड को बढ़ाता है, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द कोड, ठीक है। बेसिकली कोड को अच्छे तरीके से लिखने का एक रूल बुक है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया पेप के बारे में अंडरस्टैंडिंग। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। और कुछ नहीं है पेप के बारे में, बस एक नॉर्मल सिंपल से इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, इसलिए आई ब्रॉट इट अप हियर। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, थैंक यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग जो कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज लूप्स इन पाइथन। तो लूप हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो लूप होता क्या है, देखो, बिफोर आई गो इनटू द लूप, सो लूप से पहले मुझे ये बताओ, हैव यू पीपल एक्चुअली सीन एनीथिंग एज लूपिंग? लूपिंग कभी देखे हो लाइफ में कि लूप बोलते किसको है, लूप किसको बोलते हैं? एनीवन किसी को आइडिया हो? Repeating हम्म, itself. क्या चीज लूप इज? Repeating itself. अच्छा, चलो, रिपीटिंग इटसेल्फ, चलो, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे कोई ऐसा लाइव एग्जांपल बता सकते हो बेसिकली, जहाँ कहीं पे देखे हो ऐसा लूप होते हुए? अच्छा, अगर तुमको यूट्यूब में या फिर अगर सावन ऐप में या किसी भी ऐप में, विंक ऐप में, किसी में भी अगर तुम हो, या वहां पे इफ यू वांट टू लिसन टू द सेम म्यूजिक अगेन एंड अगेन, तो वहां पे तुम देखना एक आइकन ऐसे बन के रहता है, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ द आइकन, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव सीन इट और नॉट, ठीक है। एक इस तरह का Yes, आइकन yes, बन के I've रहता seen है, it. ऐसे रहता है,
and this is going to come like this and this will be something like this रहता है, देखिए, यानी बेसिकली रिपीट दिस, रिपीट करने के लिए, हाँ। ठीक है। तो इसी को लूप बोलते हैं। लूप मतलब क्या है कि एक ही बार जो किए हैं उसी को बार बार चलाओ। सो इफ यू वांट टू डू इट, अगर एक गाना कोई पसंद आ गया आपको, ठीक है, और आप उसको बार बार सुनना चाहते हो, तो फिर आप उसको क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे लूप करते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाओ सॉरी। तो आते हैं हम लोग लूप में, और लूप में अब चलते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो लूप में क्या होता है बेसिकली, लूप के अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे सिंबल के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो बार बार रिपीट होना चाहिए। अच्छा, रिपीट होना चाहिए। अच्छा, ये कब तक रिपीट होता है निशी? जैसे मान लो आजकल एक बहुत फेमस गाना चल रहा है ना, कहानी सुनो, है कि नहीं? तो वो कहानी सुनो को अगर हमको अब रोकना है तो कैसे होगा? लूप एंड करना पड़ेगा। लूप एंड करना पड़ेगा। तो लूप एंड कब से होता है? मान लो हमको 10 बार सुनना है, 10 बार के बाद नहीं सुनना है, तो हमको क्या है कि हम लोग प्रोग्राम को बोल देंगे भाई 10 बार बजाओ, 10 बार के बाद जहां 10 के बाद 11वां हो जाए बंद कर दो, राइट? यस और नो? यस। करेक्ट। तो बस यही होता है लूप। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग को अगर बाहर निकलना है, उससे अगर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा बताओ? फोन की बैटरी कंटिन्यू खत्म हो चल। जाएगी। फोन की बैटरी नहीं खत्म होगी, ठीक है, वो चलता रहेगा, ठीक है, वो कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा, और जब कंटिन्यूअस कोई भी चीज चलते रहता है दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप क्या होता है कि भाई तुम्हारा वो कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रहा है, तो वो बार बार रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो बताओ अभी यहाँ पे अभी हम लोग क्या है, तो देयर विल बी वन थिंग कॉल्ड एज कंडीशन, राइट, जो हम लोग को बताएगा कि कब तक रहना है और कब निकलना है, राइट। एक चीज क्या रहेगा उसके अंदर, कंडीशन। क्या रहेगा उसके अंदर? कंडीशन होना है ना। कंडीशन अगर नहीं होगा तो कैसे होगा बताओ? कंडीशन नहीं होगा वो तो फिर इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, करेक्ट। तो एक कंडीशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस कंडीशन को कुछ मैनेज करने के कोड्स होने चाहिए, ठीक है, मैनेज करने के कोड्स होने चाहिए। तो आओ हम लोग देखते हैं। अच्छा, अभी तुम लोग देखो, अभी तुम लोग जब ऐसे नॉर्मल लिखते हो, ऐसे प्रिंट प्रिंट, और यहां पे अगर लिख देते हैं फैजान, तो ये क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? प्रिंट करेगा फैजान। प्रिंट करेगा, देखते हैं करता है कि नहीं, ठीक है। आओ, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट क्लिक और यहाँ पे आओ पाइथन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वाइल लूप, वाइल लूप, ठीक है। चलो, वाइल लूप में क्या है यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। तो वाइल लूप में क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखने से पहले अभी मैं तुम्हें सिर्फ लिख के दिखाऊं, प्रिंट, ठीक है, फैजान, ठीक है, प्रिंट फैजान। तो अभी देखो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे बस वाइल लूप में आते हैं और रन करते हैं इसको, रन वाइल लूप, ठीक है। तो ये देखो क्या दिया हमको, क्या दिया शारिक? Faizan was printed. ओके शारिक, इफ आई वांट टू प्रिंट फैजान 10 टाइम्स, क्या करेंगे? Then we have to loop it. लूप इट तो ठीक है, ऐसे अगर नॉर्मल इंसान होता तो क्या करता? कंट्रोल सी, रुको थोड़ा इज्जत से कर दे, कंट्रोल सी, Copy कंट्रोल paste. वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, जितना बार करना है कर दो और उसके बाद रन कर दो। हुआ? ये तो दे दिया बढ़िया से, है कि नहीं? Yes, yes. दे दिया ना। ये करेंगे, बट इज इट अ गुड वे? अभी मानो हमको 2000 बार लिखना है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया 5000 बार लिखो, लिखोगे क्या बैठ? No, no, no. नो, राइट। निशी लिखोगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो, ऐसे ही हम लोग काम चोर होते हैं, हम लोग तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग खोजेंगे इजी वे आउट चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड एन इजी वे आउट। तो इजी वे आउट क्या है? सबसे पहले बोलेंगे भाई स्टार्ट कहाँ से होना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक आई बना देते हैं, आई, ठीक है, और आई को नंबर दे देते हैं कि भाई तुम 1 से स्टार्ट हो। जब हम लोग का होगा तो उसको 1 बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? 1, ठीक है। और अब क्या करना है, वाइल के अंदर कंडीशन लिखना है। अब हमको वो बोला कि फैजान को 10 बार प्रिंट करो, ठीक है।
तो हम क्या बोलेंगे, जब तक i 10 नहीं होता है, जब तक i क्या होता है, i is 10 i is 10 नहीं, i is जब not तक equal 10 to 10, नहीं हो, not हाँ equal to 10। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, जब तक i is less than equal to 10, ठीक है, while का मतलब जब तक होता है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, जब तक i 10 लेस देन या इक्वल टू 10 है, तब तक अगर ये ट्रू होगा तब अंदर का काम होगा, राइट, यस और नो, बताओ। हम क्या बताए थे, यस ट्रू होने से अंदर जाता है, बताए थे ना। तो अभी देखो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 क्या है, 1 1। तो आगे चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू या फॉल्स। अरे 1 10 से छोटा है, तो 1 लेस देन इक्वल टू, लेस देन मतलब हम लोग पूछ रहे हैं, यहाँ सवाल हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता नहीं है, बट अपने दिल में लगा लो वहां पे क्वेश्चन मार्क। तो आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आंसर इज ट्रू, राइट, यस और नो, ट्रू। तो अंदर गया और ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा फैजान को, करेक्ट करेगा ना, तो बोलो हाँ कि ना, हाँ हाँ करेगा। अब इसके बाद ये क्या होता है, प्रोग्राम बोलता है कि भाई अब यहाँ के बाद फिर ऊपर चलो। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्राम क्या बोलता है, आई जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या बोलता है, प्रोग्राम बोलता है कि भाई साहब यहाँ के बाद जब ये लाइन हो जाए ना एग्जीक्यूट, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक तुम ये बाहर नहीं निकल सकते हो। तो यहाँ के बाद जैसे ये नेक्स्ट लाइन पे आता है, ये बोलता है कि वापस चलो इसके पास और पूछो इससे कि भाई साहब सही हो कि नहीं, ठीक है। तो जब वह लूप क्या करता है, लूप बोलता है कि जब तक ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक हम निकलने नहीं देंगे। अभी बताओ आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है बताओ। लेस देन इक्वल टू 10। अरे आई का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, कंडीशन नहीं। आई अच्छा का वैल्यू अभी क्या है, 1 1 ही है। फिर ये आएगा, फिर प्रिंट करेगा फैजान, ठीक है। तो चलो आओ हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, तो आ जाओ यहाँ पे रन करते हैं इसको। देखो ये प्रिंट करते जा रहा है, दिख रहा है, रुक नहीं रहा है, नहीं रुक रहा है ना। देखो लिखा है टू मच आउटपुट टू प्रोसेस, ये 10 बार तो नहीं, 10 बार से ज्यादा कर दिया, देखो कर रहा है ना, यस और नो। तो हम थोड़ा रोक देते हैं इसको, यहाँ ये टर्मिनेट बटन है, इसको रोक देते हैं। तो ये हुआ क्या पता है आपको, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। क्यों इनफाइनाइट लूप में गया पता है, क्योंकि देखो आई का वैल्यू हमेशा 1 है, तो कभी ये तो हमें, और ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो हम लोग इसको फॉल्स कैसे करेंगे, इसको फॉल्स करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये करना होगा। तो अब क्या होगा, देखो फर्स्ट टाइम ये जब चलेगा तो ये फर्स्ट टाइम प्रिंट किया फैजान को, अब आई का वैल्यू क्या हो गया, अरे अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, i+1 तो 2 हो जाएगा ना, 2 हो गया। फिर ये यहां से कहां जाएगा, फिर ये यहां से यहां जाएगा, करेक्ट। अब आगे चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल ट्रू है कि नहीं है बताओ। ट्रू तो फिर अंदर जाएगा, फिर फैजान को प्रिंट करेगा, अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 3 करेक्ट। फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा और ये चलते रहेगा। अब मान लो आई का वैल्यू 9 है, 9 है, अब आगे प्रिंट किया फैजान, प्रिंट कर दिया। फिर आएगा, अब चेक करेगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। फिर आगे चेक करेगा, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स अरे इक्वल टू भी है ना, हाँ 10 हाँ लेस देन ट्रू इक्वल टू, ट्रू ट्रू हो ट्रू गया। तो फिर हाँ आगे हाँ अंदर प्रिंट करेगा फैजान, कर दिया। इसके बाद फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेगा, तो अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 11। अब फिर ये वापस ऊपर गया, अब जाके चेक अब करेगा आई की जगह फॉल्स होगा 11 रखो, अब फॉल्स हो गया। अब जब ये फॉल्स हो फॉल्स जाएगा फॉल्स होता है तो ये उठ के अब नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट लाइन का कोड होगा बाहर में। और अगर फॉल्स नहीं होगा तो ये अंदर वाले चीज को चलाते रहेगा, अंडरस्टूड, यस और नो। यस यही पार्ट लूप होता है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, हाँ कि ना, हाँ यस यस। ठीक है। हमेशा याद रखोगे, एक हम लोग यहाँ पे ऐसा रखते हैं, जब भी वाइल लूप यूज करते हैं तो हम लोग एक ऐसे करके रखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एंड पॉइंट यहाँ पे उसको प्लस करना होता है। नहीं करोगे तो क्या होगा, देखे ना अभी क्या हो रहा था,
अगर ना कंडीशन का भी फॉल्स होगा आपका, नहीं होगा। नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। अभी देखो, अभी जो हम प्रोग्राम लिखे हैं, इस प्रोग्राम में कैसे अब हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे भी रन करते हैं। देखो देखो ये 10 बार आया, गिन लो। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, आ गया 10 बार। तो हम लोग क्या किए थे, 1 से लेके 10 तक। तो 1 से 10 के बीच में कितना आता है, 10 ही आता है ना, 10 ही आता है ना, हाँ कि ना। हम्म। What if now I want you to print number from 1 to 10? 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है, कैसे करोगे? 1 तुमको प्रिंट करना, 1 किसके अंदर आ रहा है फर्स्ट टाइम में? आई के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट टाइम में किसके अंदर आएगा? 2। ये जो नेक्स्ट हम लोग लिखे आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। यानी ये दोबारा घूम के आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हाँ, आई लिख, यहाँ पे आई आई लिख दो। लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ रन करके क्या होगा। तो देखो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। लो थोड़ा जूम कर देते हैं। हो गया 1 से लेकर 10 तक प्रिंट। हम्म। तो तुमको कभी भी नंबर चाहिए तो क्या प्रिंट करोगे? आई को। किसको चाहिए, क्या प्रिंट करोगे? आई मतलब आई। जो वेरिएबल लेंगे, राइट। करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। तो क्वेश्चन क्या है कि हम लोग बचपन में ऐसे मैथ्स में लिखते थे। पता नहीं कितना आदमी मेरे मुंह से मैथ्स सुन के खुश नहीं होता है। ठीक है, बट डोंट वरी, आई विल मेक मैथ्स इजी फॉर यू। एटलीस्ट यू विल थैंक मी फॉर दैट। स्कूल में समझ में नहीं आया, अब आ रहा है। ठीक है, चलो। तो हम लोग बचपन में ऐसे लिखते थे, 3 × 1 = 3। एकदम डब्बा डब्बा वाले कॉपी में लिखते थे, याद है? ऐसे लिखते थे हम लोग, यस और नो? यस। Yes, yes. And it used to go up till 3 × 10 = इक्वल टू 30। 30। तो अब ये आपको प्रोग्राम प्रिंट करना है। अच्छा लग रहा है देख के? अब प्रोग्राम में कैसे करेंगे, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि यहाँ पे हम लोग को समझना है कि हम लोग का यहाँ पे कंटेंट क्या है। तो देखो यहाँ 3 फिक्स है, 3 फिक्स है ना, हाँ कि ना? 3 फिक्स है ना? अरे बताओ, 3 तो फिक्स रहेगा ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो हम लोग जो प्रिंट करते हैं वहां पे क्या करेंगे, प्रिंट। ठीक है, मान लो ये 3 को हम n के अंदर रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, एफ और डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर हमको 3 मेरा n के अंदर है, तो यहाँ 3 कैसे आएगा? n लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। हम्म। आ गया। अब इनटू, तो भाई इनटू तो ऐसी मैसेज लिखना होगा, तो इनटू को x लिख दो। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 हो रहा है। अभी 1 2 3 4 10 तक कहां से आया था, किसके अंदर था? किसके अंदर था? 1 से 10 तक कहां से आया था? आई के अंदर मिला था आई ना। आई आई आई। तो यहाँ पे आई लिखोगे, हम्म। फिर इक्वल टू ऐसे डालोगे। और अब जो तुम्हारा यहाँ पे 3 6 9 ये कैसे हो रहा है, तुम्हारा n इंटू आई कर देंगे तो देखो आंसर मिल जाएगा। यस और नो, सॉरी, यस और नो? यस। मिल जाएगा ना, हाँ कि ना? हम्म। तो बस ये मैसेज लिख दो, यहाँ पे काम खत्म। तो f यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे क्या बोले थे, n। तो हम लोग अगर n निकालना, अगर यूजर से लेना है तो ले लो यहाँ पे n की टेबल ऑफ। ठीक है, n इक्वल टू यहाँ पे इंट। ठीक है, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे अंदर मैसेज लिख दो, विच नंबर्स टेबल डू यू वांट, कौन से नंबर का टेबल आपको चाहिए। तो वो बताएगा, अपने से बताने दो। तो ये हो गया, यहाँ पे n प्रिंट हो जाएगा, जो भी नंबर देगा वो नंबर आ जाएगा, नंबर। और यहाँ पे इनटू, और यहाँ पे फिर i, फिर यहाँ पे इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या करोगे, एन n एन इंटू इंटू आई। n आई। इंटू आई। हो गया। अब देखो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट वाले में चेंज करो, बाकी नीचे वाले को वैसे ही रहने दो, बिकॉज ये नहीं होगा तो फिर आपका तो इनफाइनाइट लूप चले जाएगा, राइट? करेक्ट। हम्म। आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करते हैं हम लोग रन। और यहाँ पे देखो कितने प्यार से पूछ रहा है, थोड़ा सा इज्जत से और इम्प्रूव कर देते हैं कोड को। चलो फिर रन करते हैं इसको बंद करके। चलो थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों को दिखने के लिए। बताओ किसका टेबल चाहिए? शायद एक 13 का टेबल बोलो तो।
13, 26, 39, 52, 65, 78. अरे क्या बात है। अभी इंस्टा पे एक मीम चला था, देखे थे? नहीं 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 देखे हो? नहीं। एक लड़की है, बोलती है कि मतलब एक लड़के को बोलती है कि मतलब तुम मुझसे जो बोलो हम वो बता देंगे तुमको, ठीक है? तो बोलता है 13 का टेबल बोलो। ठीक है, तो वो नहीं बताती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं 13। तो देखो यहाँ 13 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, देखो हो रहा है। Yes. 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 5 65। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? यानी ये जो while में जो ये कंडीशन हम लोग डाले हैं I is लेस देन इक्वल टू 10, तो ये हम लोग किसी भी कैलकुलेशन में डाल सकते हैं, राइट? क्योंकि ये ट्रू है हमेशा। हमेशा कैसे ट्रू है? वो 10 तक ही ट्रू रहेगा, 10 के बाद फॉल्स। अच्छा 10 के बाद फॉल्स हो रहा है ना? देखो आई तो बढ़ के हुआ ना, बताए थे ना 11 में फिर फॉल्स हुआ था, तुम ही ने कहा था। लेकिन फिर वो इस मतलब इक्वेशन में कैसे यूज हो रहा है, मेरे को वो समझ में नहीं आया। किस इक्वेशन में? जैसे उसमें क्या था कि 10 तक काउंटिंग था तो हम लोग यूज किए, ठीक है। लेकिन अब जब ये हम लोग दूसरा इक्वेशन कर रहे हैं, जैसे 13 का टेबल है, तब इसमें ये कंडीशन कैसे होगा? वो देखो ये कंडीशन सिर्फ लगा है हम लोग लूप, ये जो है ना ये वाला और ये वाला, जो 3 लाइन देख रही हो ना, i इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, ये जो 3 है ना, ये बेसिकली तुमको बोलता है कि 1 से लेके 10 तक तुम लूप चलाओगे, यानी 10 बार लूप चलाओगे। ये क्या बोल रहा है बेसिकली? ओके ओके ओके, ठीक हाँ है, अब समझ लूप गए। चलाए और बस अंदर में सिर्फ ये काम कर दो, उसको प्रिंट करते रहो। तो आई का वैल्यू हर बार बढ़ रहा है ना? आई का देखो बढ़ रहा है ना, हम लोग जहाँ पे आई प्रिंट किए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम लोग आई को यूज करके हम लोग तो पता है टेबल कैसे होता है, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, वैसे करके, ओके राइट? ओके, हाँ क्लियर अब है? समझ, हाँ हाँ ओके। चलो, तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था वाइल लूप का, ठीक है? कि वाइल लूप में कैसे किया जाता है प्रोग्राम को। तो आई गिव यू मोर क्वेश्चंस ऑन वाइल लूप बेसिकली, और वाइल लूप हम लोग करेंगे, और वाइल लूप के बाद फिर हम लोग चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में। बट बिफोर एंडिंग टुडेज क्लास एक बहुत छोटी सी चीज़ बताने जा रहे हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी, निशी, इफ आई गिव यू अ नंबर, ठीक है? मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ठीक है? 3526, can you tell me the last digit of this number? अरे लास्ट डिजिट बताओ। 6। कैसे सोचा? कैसे कैसे सोचा? सोचा? मतलब मतलब हम ये लोग दिखा, ये मत लास्ट बोलना कि डिजिट को हम लोग राइट साइड से काउंट किए, ऐसे ही कुछ लॉजिक देना होगा, राइट? ना, लास्ट डिजिट तुमने 6 ही कहा। अभी हम कुछ और नंबर बोलते हैं 1 2 3, इसमें क्या बोलोगी? 3 हाउ? नॉट 10। राइट से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है? तो देखो हम क्या बोले, जो ह्यूमन ब्रेन सोचता है अगर आप उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दोगे, देन यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रोग्रामर। तो कुछ भी दिमाग में चल रहा है ना कि भाई ये कैसे, अब सोचो व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड दैट, बिकॉज मैथ्स से ही चलता है पूरा दुनिया, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो तुम्हारा दिमाग कैसे काम किया, ठीक है? लॉजिक क्या होता है? तो लॉजिक होता है कोई भी नंबर लो, ठीक है? एन के अंदर मान लो ये नंबर है, ठीक है? कभी भी एन मॉड 10 करो, देखो आंसर क्या मिलेगा, करके देखो। 352.6। एन मॉड 10, मॉड क्या देता है शारिक? वो रिमाइंडर 10 6 रिमाइंडर। 6 देगा। 1 2 3 इसमें क्या देगा? 3 कोई भी नंबर ले लो, 5 4 3 2 1 7 6 4, इसमें क्या होगा लास्ट डिजिट? 0.4, सब में 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, अब समझ गए हम अरे लॉजिक। पॉइंट नहीं यार, ये लास्ट वाला डिजिट हमेशा कभी भी मॉड करोगे ना
तो याद रखो कभी भी n mod 10, कभी भी आपको लास्ट डिजिट चाहिए तो क्या करना होगा, n mod। हाँ वही हम बोले कि जितना भी बड़ा डिजिट्स हो लास्ट में मतलब जैसे ये 5432176 है ना, तो ये अगर मॉड 10 करेंगे तो 0.4 वैसे आएगा। नहीं नहीं 0.4 नहीं देगा, वो 4 ही देगा। मॉड करोगे तो सिर्फ रिमाइंडर देगा, उसको डिवाइड करके देखो तुम, पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट नहीं बोलो, ठीक है। इट विल ऑलवेज गिव यू द लास्ट नंबर। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 123 को करके दिखाता हूँ। 123 इसको डिवाइड करो 10 से, कोई भी नंबर हो उसको डिवाइड करो, तुमको मिल जाएगा। तो 10 1 ज़ा 10, 23 बचा, फिर 10 2 ज़ा 20, आंसर विल बी 3। कोई भी नंबर, ये वाला नंबर है, इसको भी कर लो 3526, 10 से करो तो सीधा देखो ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 352 को, तो क्या हो जाएगा 352 और 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 बचेगा, यस और नो। यस। करेक्ट। तो याद रखना कभी भी हम पूछेंगे लास्ट डिजिट चाहिए तो क्या बोलोगे इक्वेशन, मॉड 10 एन मॉड 10। n mod 10। अच्छा अगर लास्ट 2 डिजिट चाहिए तब 100 एन मॉड 100। परफेक्ट। लास्ट 3 डिजिट 1000 एन मॉड n mod 1000। 1000, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अगर हम ये लिख दें क्या देगा, तो ये फ्लोर डिवीजन देगा, मतलब जो मतलब क्या आगे देगा, के हमको डिजिट्स है। आंसर बताओ। चलो 123 हम दिए हैं, इसमें हमको आंसर क्या मिलेगा, 12। 3526 दिए हैं तो क्या मिलेगा, 352। 352। तो मिल क्या रहा है, सोचो मिल फ्लोर क्या रहा फ्लोर वैल्यू जो है। है। हमको सब कुछ मिल रहा है लास्ट डिजिट छोड़ के। 123 में क्या मिला, 12। हाँ तो लास्ट डिजिट छोड़ के मिला। 3526 में क्या मिला, 352 मतलब लास्ट डिजिट छोड़ के। हाँ ठीक है। तो हम लोग को कोड को रीड करना है कि दे क्या रहा है वो, ठीक है। हम लोग को अंडरस्टैंड करना यही है यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखो अगर हम कभी भी बोलते हैं लास्ट डिजिट बार बार हटाना है तो क्या करोगे कि नंबर जो भी है उसको डबल स्लैश 10, सिंगल स्लैश नहीं, सिंगल स्लैश डेसिमल देता है, डबल स्लैश क्या देता है, फ्लोर डबल डिवीजन। स्लैश होल नंबर देता है, ठीक है। तो याद रखोगे। तो और इसका जो रिटर्न टाइप होता है इंटीजर होता है, उसका क्या होता है, उसका फ्लोट होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये समझ गए। तो कभी भी लास्ट डिजिट छोड़ के कुछ भी चाहिए शारिक क्या करोगे, शारिक लास्ट डिजिट छोड़ के कुछ भी चाहिए व्हाट विल यू डू, mod 10। लास्ट डिजिट छोड़ के बोल रहे हैं यार, n स्लैश स्लैश 10, हाँ ये अपर सीलिंग। ठीक है। और अगर आपको लास्ट डिजिट चाहिए तो n mod 10, ठीक है। अंडरस्टूड। यस यस। चलो सो विद दिस आई एम क्लोजिंग टुडेज सेशन।